Okay guys, so today's video is going to be on a few more questions of the chapter matter. Okay, so last day I explained you from question number 1 to question number 7. Yes, so today I've got a few more questions after that, and by mistake I've started again from question number 1. So question number, wait 1 minute, question number 7 ends over here, and then again I've started from question number 1. So don't look at the numbering. Okay, so the numbering is wrong. This should be question number 8. Yes, and after that keep on continuing. Okay, so what does this question say? That what are the three states of matter? Yes, so what are the three states of matter? So everything around you which occupies space is matter. Yes or no? And has weight is matter. Yes, everything around you is matter. The phone which you are studying from is matter. The water which you are going to drink is matter. Yes, the air which you are breathing is matter. So everything around you is matter. So what are the three states of matter? It can either be a solid. Okay, the phone from which you are studying is a solid. Okay, or it can be a liquid. Okay, the water which you are going to drink is a liquid. Yes, or it can be a gas, means the air which you are going to breathe in is a gas. Okay, next question is, what are the three properties which decide the state of a substance? Like if I give you this thing, if I give you suppose a vehicle. Okay, you know what a vehicle is, which you use for transportation. Yes, if I give you a vehicle and ask you to identify that whether it is a bike or a car, how are you going to judge? Yes, I repeat, if I give you a vehicle and I ask you to decide that whether it is a bike or a car, how are you going to decide? You're going to decide on the number of wheels, yes or no? You're going to decide on the number of wheels. If that vehicle has two wheels, then it is a bike. Yes, and if the vehicle has four wheels, then it is a car. Yes or no? This is how you're going to judge. Simi 1 minute guys. Yes, similarly if I give you any state of matter, okay, if I give you any matter, how are you going to understand that whether it is a solid or is it a liquid or is it a gas? How are you going to understand? If I give you something, how are you going to understand that whether it is solid, liquid or gas? What are the things which you are going to look at? What are you going to look at? You are going to look at the intermolecular space. Yes, first you are going to look at the object. Yes, and you are going to see whether the molecules in it are very close or maybe the molecules in it are a bit far. Yes, or whether the molecules in it are very far away from each other. Yes, or the molecules in it are very far away from each other. Yes, you are going to first look at that. Then you are going to look at the intermolecular force of attraction. Yes, that whether the molecules of that substance, they are very close to each other. Very close to each other means what? The attraction is high. Only when the attraction is high, only then the molecules will be very close to each other. Yes or no? Or you're going to look that whether they are a bit far away from each other. If they are a bit far away from each other, then what is the meaning? Then it means that the molecular force of attraction is a bit low. Yes or no? And if they are very far away from each other, then you will understand that the molecular force of attraction is very low. Yes or no? So this is the second thing which you are going to look at to judge that whether it is a solid or a liquid or a gas. Yes, you are going to look at the force of attraction. Yes, then you are going to look at the movement of molecules. Yes, then you are going to look at the movement of molecules. If the molecules are at one particular place, they are not moving at all, they are just vibrating over here. Yes, you all know what vibration is. Yes, you can this thing, you can check it on your phone as well. Your phone vibrates sometimes. If the molecules are just vibrating at one particular place, then it is a solid. Yes, if the molecules are moving
if the molecules are moving within a particular boundary. Yes, suppose in this one the molecules will move but they won't go outside this rectangle. Yes, if the molecules are moving within a particular boundary, then you call it a liquid. Yes, and if the molecules are very far away and they can even leave this particular boundary, they can even go outside, then it is a gas. Okay, so this is how you are going to. So the question is, what are the three properties which decide the state of a substance? क्या क्या चीज़ें देख के हम लोगों को पता चलेगा कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? क्या क्या चीज़ें देखेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखेंगे कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना जगह है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन देखेंगे कि उनका मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, उन एक दूसरे से चिपका हुआ है कि थोड़ा सा दूर है कि बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है, अगर अगर बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है तो फिर सॉलिड है, अगर थोड़ा सा पास है तो फिर लिक्विड है, और अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो फिर वो गैस है। ठीक है, और तीसरा क्या चीज़ देखेंगे? मूवमेंट देखेंगे। अगर एक ही जगह पे खड़े होकर वाइब्रेट कर रहा है मतलब क्या है? मतलब सॉलिड है। ठीक है, अगर थोड़ा सा मूवमेंट दिखा रहा है, अगर थोड़ा सा इधर उधर मूव कर रहा है तो फिर उसको क्या बोलेंगे? उसको लिक्विड बोलेंगे। और अगर एकदम इधर उधर जहाँ मर्जी वहाँ जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको गैस बोलेंगे। ठीक है, ओके गाइस, सो दिस वीडियो इज फ्रॉम नाउ ऑन इट इज़ गोइंग टू बी ऑन इन हिंदी ओनली। ओके, इसके बाद क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट किसे बोलते हैं? किसी भी सब्सटेंस को क्या क्या चीज़ें देख के पता चल जाएगा कि ये सॉलिड है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम हुआ, उनके बीच का स्पेस अगर बहुत ही ज़्यादा कम हुआ तो फिर वो सॉलिड है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज़ वेरी हाई। अगर स्पेस कम है मतलब क्या? अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से एकदम चिपका हुआ है। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिर तब सॉलिड है। एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव। ये मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे, यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर ऐसे स्टेट को हम लोग सॉलिड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और मॉलिक्यूल्स एकदम मूव नहीं कर पाता। ठीक है, लिक्विड स्टेट किसे बोलेंगे? लिक्विड स्टेट किसे बोलेंगे? जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो सॉलिड से ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड्स। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो सॉलिड्स जितना तो इतना पास पास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दूर है, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, और क्या? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज वीक। थोड़ा सा दूर है मतलब क्या? इनका अट्रैक्शन वीक है, एक दूसरे को उतना कस के अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा ये लोग। एक बार फिर से बोलता हूँ, एक दूसरे को उतना कस के अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा ये लोग। ठीक है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक है। ठीक है, और तीसरा क्या है? मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव विद इन द कंटेनर। ठीक है, अगर मैं एक बॉक्स में लिक्विड डाल दूं तो फिर उसका मॉलिक्यूल्स उस बॉक्स के अंदर ही घूमता रहेगा, बॉक्स के बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे स्टेट को हम लोग लिक्विड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, गैसियस स्टेट किसे बोलते हैं? जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी हाई, मतलब एक मॉलिक्यूल इधर है तो दूसरा मॉलिक्यूल इधर है, तीसरा मॉलिक्यूल इधर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है एक दूसरे से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ वेरी वीक। और जब बहुत ही ज़्यादा दूर है मतलब क्या? इन लोगों के बीच में बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल भी कोई फोर्स नहीं है इन लोगों के बीच में, इसीलिए इतना दूर दूर चला गया ये लोग। ठीक है, एंड द मॉलिक्यूल्स आर, अच्छा डूड ये मार्कर रुक गया, एक मिनट। ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव एवरीवेयर। ठीक है, तो फिर मैं अगर एक बॉक्स में गैस डाल दूं, ठीक है, गैस डाल दूं तो फिर इसका जो मॉलिक्यूल्स है ये बॉक्स से बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूल्स है ये बॉक्स से बाहर भी निकल सकता है। ऐसे स्टेट को हम लोग गैसियस स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स पे। ठीक है, सॉलिड्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है? प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या? प्रॉपर्टीज़ मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। ठीक है, पहला क्या है? वही सेम, वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड्स में एकदम एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है, बीच में कोई स्पेस ही नहीं रहता। वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बहुत हाई है। ठीक है, इसीलिए इतना चिपका हुआ है, एक दूसरे से इतना अट्रैक्टेड है, इसीलिए तो चिपका हुआ है। कैनॉट फ्लो। अगर एक पेंसिल को मैं फ्लोर पे गिरा दूं, अगर एक ऐसे पेंसिल को मैं फ्लोर पे गिरा दूं तो फिर वो बह जाएगा, वो बहने लगेगा? नहीं। लेकिन अगर पानी को गिरा दूं तो फिर वो बहने लगेगा, हाँ या ना? लेकिन सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट फ्लो। उसके बाद है डेफिनेट शेप। ठीक है,
डेफिनेट शेप अभी उसको एक रूम में रखो कि दूसरे रूम में रखो कि बिल्डिंग से नीचे फेंक दो, वो शेप वही सेम रहेगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा डेफिनेट शेप। इट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स और बीटन इनटू शीट्स, ये वाला नया पॉइंट है, ये वाला ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर एक सॉलिड को सपोज मैं तुम्हें आयरन का एक बार दे दूं, ऐसा एक आयरन बार दे दूं और एक हथौड़ा दे दूं, ठीक है, और अगर मैं तुम्हें एक हथौड़ा दे दूं और बोलूं कि हथौड़े से इसको मारते रहो, तो फिर क्या होगा, ये आयरन बार या तो पतला सा वायर बन जाएगा, ठीक है, या फिर एक पेज जैसा बन जाएगा, शीट, ठीक है, या फिर एक पेज जैसा पतला हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हो सकती है एक सॉलिड के साथ, ठीक है। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड, सॉलिड्स का मॉलिक्यूलर मॉडल क्या है। मॉलिक्यूलर मॉडल मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मॉडल मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर मॉडल मतलब कि वो अंदर से कैसे दिखता है, ठीक है। मैं एक पेंसिल को बाहर से देख के बोल सकता हूँ कि वो रेड है, कि ग्रीन है, कि पर्पल है, ठीक है, मैं एक पेंसिल को बाहर से देख के बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अंदर से वो कैसा, अंदर से ये तीनों ही सेम दिखते हैं, ये रेड है, ठीक है, ये वाला जो है ये रेड है, ये वाला जो है ये ग्रीन है, और ये वाला जो है वो पर्पल है, ठीक है, लेकिन अंदर से तीनों ही सेम दिखते हैं। कैसे दिखते हैं अंदर से ये तीनों, वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इनके अंदर में स्पेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एकदम चिपका हुआ है मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट इन देयर मीन पोजिशन, ये मॉलिक्यूल्स मूव तो नहीं कर सकता लेकिन कोशिश ज़रूर करता है। कैसे कोशिश करता है, एक ही जगह पे वाइब्रेट करके, ठीक है, एक ही जगह पे वाइब्रेट करता रहता है ये लोग, ठीक है, कोशिश बहुत करता है निकलने का लेकिन निकल नहीं पाता सॉलिड में, ठीक है। वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, वाइब्रेट इन देयर मीन पोजीशन मतलब क्या, एक ही जगह पे खड़े होकर ये लोग वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है, सॉलिड्स बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है। डेंस का मतलब क्या होता है, अच्छा मैं तुम्हें दो चीज़ों का एग्जांपल, ये डेंस का मतलब क्या, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये मैं वाटर और हनी का एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक है। वाटर पे अगर हम हाथ डालें तो फिर हाथ एकदम आसानी से निकल आएगा, ठीक है। एक ऐसा जार है जिसमें वाटर है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर अगर तुम हाथ डालो तो फिर बहुत आसानी से ये निकल आएगा, ठीक है। वही अगर मैं तुम्हें हनी का एक जार दे दूं ऐसे, और उसमें हनी भरा हुआ है, ठीक है, तो फिर हाथ डाल के फिर उसको निकालने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हनी थोड़ा सा मोटा होता है, वाटर जो है वो एकदम पतला होता है, लेकिन हनी जो है वो थोड़ा सा मोटा होता है। ये क्यों है, क्योंकि हनी का जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के पास है, ठीक है। लिक्विड है मतलब थोड़ा सा तो दूर है, लेकिन वाटर के मुकाबले ये लोग ज़्यादा पास है। वाटर में अगर इतना दूरी पे है तो फिर हनी में कुछ ज़्यादा ही दूरी है। सॉरी, वाटर उल्टा बोल दिया, अब तक जो बोला एकदम उल्टा बोल दिया। वाटर में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हनी में उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसीलिए हनी जो है वो ज़्यादा डेंस है, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ, हनी का जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से वाटर के मुकाबले ज़्यादा पास है, ठीक है। वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर है, ठीक है। इसीलिए हनी जो है वो ज़्यादा डेंस है, ठीक है, डेंस मतलब मोटा, ठीक है। और उस मुकाबले तो सॉलिड्स बहुत ज़्यादा डेंस होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड्स में तो एकदम पास है, हनी में तो फिर भी चलो थोड़ा सा गैप है, लेकिन सॉलिड्स में वो एकदम पास है, ठीक है। इसीलिए सॉलिड्स हैव अ हाई डेंसिटी, ठीक है। ये है मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड अंदर से कैसा दिखता है, ठीक है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। इसके बाद आएंगे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। लिक्विड का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। लिक्विड प्रॉपर्टीज़ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फीचर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मोर देन सॉलिड्स, लिक्विड के बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एकदम चिपका हुआ रहता है, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा गैप रहता है उन लोगों के बीच में, ठीक है। तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह है वो सॉलिड्स के मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन,
और ये 2 पॉइंट सेम ही है ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि कब मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप कब आ जाता है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कम होता है, ठीक है, तभी गैप आ जाता है, हाँ या ना? तो फिर वही बोल रहा है पॉइंट में, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू फ्लो विद इन द लिक्विड, ठीक है। तो फिर ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये एक बाल्टी है, इसके अंदर पानी है और इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो फिर ये लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, ये लोग बाल्टी में ही इधर उधर घूमते रहते हैं, बाल्टी के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव विद इन द लिक्विड, बाल्टी में ही इधर उधर घूमते हैं। नो डेफिनेट शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। मेरे पास 1 लीटर पानी है, मैं उसे बाल्टी में डालूँ तो फिर वो पानी बाल्टी का शेप ले लेगा, ठीक है। मैं उसे ग्लास में डालूँ तो फिर वो ग्लास का शेप ले लेगा, ठीक है। मैं उसे पाइप में डालूँ तो फिर वो पाइप का शेप ले लेगा, ठीक है। तो फिर लिक्विड का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ठीक है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब क्या? 1 लीटर पानी, ठीक है, 1 लीटर पानी, मैं उसको बाल्टी में डालूँ वो 1 लीटर रहेगा, मैं उसे ग्लास में डालूँ वो 1 लीटर ही रहेगा, और मैं उसे पाइप में डालूँ फिर भी वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। और ये 1 लीटर क्या होता है, और ये 1 लीटर क्या है? ये जैसे हम लोग वेट मेजर करते हैं ना, वेट ऑफ अ पर्सन कैसे मेजर करते हैं? केजी में मेजर करते हैं। वैसे ही वेट ऑफ द लिक्विड हम लोग कैसे मेजर करते हैं? लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। वे समझ में आया? इसके बाद लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस मतलब क्या? ये एक बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी में मैंने इधर छेदा कर दिया, इधर छेद कर दिया, इधर छेद कर दिया, नीचे में छेद कर दिया, इधर छेद कर दिया, हर तरफ से पानी निकलने लगेगा, इधर से भी पानी लीक होने 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 लगेगा। तो फिर इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये है कि ये जो लिक्विड है इसके अंदर, ये हर तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, हर तरफ दबाव बना रहा है, ठीक है, तभी पानी हर तरफ से निकलेगा, जहाँ पे भी मैं छेद बनाऊँ वहीं से निकलने लगेगा पानी, ठीक है। इसी को बोलते हैं लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। इसके बाद आएंगे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स अंदर से कैसा दिखता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज हायर देन सॉलिड्स। इनके बीच का जो स्पेस है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज लोअर, ये तो तुम लोगों को पता ही है कि थोड़ा सा गैप है, मतलब क्या? अट्रैक्शन लो है, हाँ या ना? ये तो तुम लोगों को पता ही है। मॉलिक्यूल्स मूव इन इरेग्युलर एंड रैंडम मोशन विद इन द लिक्विड। मॉलिक्यूल्स जो है अगर बाल्टी में है तो फिर बाल्टी में ही इधर उधर घूमता रहेगा। और इरेग्युलर एंड रैंडम मोशन मतलब क्या? एक सपोज ये बाल्टी है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, फिर स्ट्रेट लाइन में ऊपर ऐसे मूव नहीं करता है, इरेग्युलर किसी भी तरफ जा सकता है, ठीक है, और रैंडम मोशन, ठीक है। लो डेंसिटी, लो डेंसिटी मतलब क्या? लिक्विड्स का डेंसिटी सॉलिड्स के मुकाबले कम होता है, ठीक है। डेंसिटी कैसे बनता है? जब मॉलिक्यूल्स एकदम पास होता है तब डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन लिक्विड्स में तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर रहता है, ठीक है, इसीलिए डेंसिटी जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस का प्रॉपर्टी क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी हाई। एक मॉलिक्यूल इधर है तो एक मॉलिक्यूल इधर है तो एक इधर है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत हाई है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन लो इज लो, वही सेम मतलब हो गया, जब मॉलिक्यूल्स इतना दूर दूर है मतलब क्या? अट्रैक्शन लो है, हाँ या ना? मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू फ्लो एनीवेयर। मैं एक बॉक्स में अगर गैस को रखूं तो फिर इसका मॉलिक्यूल्स कभी भी जंप करके बाहर निकल सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू फ्लो एनीवेयर। इनका कोई इनका नीदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। शेप तो डेफिनेट होता ही नहीं है, मैं उसको जार में डालूँ जार का शेप ले लेगा, किसी रूम में डालूँ रूम का शेप ले लेगा, ठीक है। और वॉल्यूम भी सेम नहीं होता, मैं जार में डालूँ तो फिर जार में भी भर सकता है, और एक बड़े से रूम में डाल दूँ तो फिर रूम का तो और भी जगह लगता है ना, तो फिर वो उसको भी फिलअप कर देगा पूरा, ठीक है। तो ना डेफिनेट शेप और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। और क्या? गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। हर डायरेक्शन में, एक जार में अगर मैं रख दूं तो फिर वो हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा लिक्विड के तरह ही, ठीक है, हर डायरेक्शन में फोर्स बनाता है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, यही 10 क्वेश्चंस लर्न करना है तुम लोगों को।